তৃণমূল কংগ্রেস কেন শেষ মুহূর্তে ইউসুফ পাঠানকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে পাঠানো থেকে বিরত রাখল তা নিয়ে খোলসা করল অভিষেক ব্যানার্জি। অভ্যন্তরীণ সূত্র অনুযায়ী দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি না নিয়েই ইউসুফ পাঠানকে সরাসরি কেন্দ্রীয় তরফে ফোন করে তার পাসপোর্ট চাওয়া হয়েছিল, যা দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়েছে। তৃণমূলের অবস্থান হল আন্তর্জাতিক কূটনীতি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। ডেরেক ওব্রায়েন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন, তৃণমূল জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রের পাশে আছে, কিন্তু কার প্রতিনিধি যাবে সেটা দল নিজেই ঠিক করবে, বিজেপি নয়। তৃণমূল কোনো বয়কট করেনি বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বরং দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাকে পাঠানো হবে বা আদেও কাউকে পাঠানো হবে কিনা সেটা দল নিজে নির্ধারণ করবে, কেন্দ্র সেটা চাপিয়ে দিতে পারে না। অন্যান্য দলের প্রতিক্রিয়া শুধু তৃণমূল নয়, শিবসেনা ও অসন্তুষ্ট। প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীকে প্রতিনিধি দলে রাখার আগে উদ্ধব ঠাকরেকে কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। সার কথা, এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, দলীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং কেন্দ্রের একতরফা পদক্ষেপে আপত্তি। তবে তৃণমূল স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রের পাশে রয়েছে, কিন্তু প্রতিনিধি মনোনয়নে দলীয় সম্মান বজায় রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। केंद्रीय सरकार के साथ थी, लेकिन अब जो है क्या वजह रही कि आपने ऑप्ट आउट किया है डेलीगेशन से जो मल्टी नेशन विजिट करेगी? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम से बहुत सारे पत्रकारों का सवाल मुझे मिला है, कुछ लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मैं आपको ये साफ साफ कह देता हूँ, एंड वी हैव स्टेटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन, that whatever decision the union government takes which aims at combating and curbing terrorism, number 2, safeguarding the sovereignty of the nation, and number 3, to protect the national interest of the country, we as a party, Trinamool Congress, will stand with the center shoulder to shoulder. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए, और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं, उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए। लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है, मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली हु विल रिप्रेजेंट फ्रॉम विच पार्टी। द बीजेपी इज एट द हेम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री, दे आर रनिंग द यूनियन गवर्नमेंट, दे कैन डिसाइड ऑन देयर पार्ट कि बीजेपी से कौन जाएगा। अब मान लीजिए कांग्रेस से कौन जाएगा, तृणमूल से कौन जाएगा, डीएमके से कौन जाएगा, आम आदमी पार्टी से कौन जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा, ये बीजेपी तय नहीं कर सकते। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टी लीडरशिप। आप एक मेंबर को मांग रहे हैं डेलीगेशन के लिए, हम 5 दे देंगे, बट द सेंटर ऑल्सो नीड्स टू शो इट्स गुड इंटेंट एंड कॉल फॉर अ वाइडर डेलिब्रेशन विथ ऑल पार्टीज इन द ऑपोजिशन कि हम एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं। वो 7 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 8 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 10 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, और आप अपना पार्टी से 4 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए कि 2 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन तृणमूल से कौन जाएगा ये बीजेपी का लोग कैसे तय करेगा, तृणमूल से कौन जाएगा ये यूनियन गवर्नमेंट कैसे तय करेगा। दे आर इलेक्टेड ऑन तृणमूल सिंबल। हम तो कह रहे हैं कि इसका ग्लोबल स्टेज पे होना ही चाहिए, आई हैव आल्सो ट्वीटेड अबाउट दिस। The world needs to come together and fight collectively against terrorism and join hands against Pakistan. I have tweeted this, it's in public domain. But Trinamool se kaun jayega, the center or the union government cannot decide unilaterally. This is all I am saying. Sir, let the center call for a wider deliberation, talk with the opposition parties and take the names from the opposition parties. भाई तृणमूल से अगर पार्टी लीडरशिप को लगा कि मुझे यहाँ से 3 लोगों को भेजना चाहिए जो इस मुद्दे पे अच्छा बोल सकता है, अच्छा कह सकता है, जो पार्टी का स्टैंड, देश का स्टैंड को ठीक तरीके से ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है, उसी को पार्टी भेजेगा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन पार्टी के साथ मिलके बात करके आपको डेलीगेशन तय करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी डेलीगेशन अब बाहर जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी से अगर कोई पार्लियामेंट से कोई लोकसभा राज्यसभा का कोई डेलीगेशन बाहर जाता है, स्पीकर जनरली बात करता है लीडर ऑफ द पार्टी के साथ, फिर लीडर ऑफ द पार्टी से बोलता है अच्छा 10 मेंबर का डेलीगेशन आप एक नाम दो, राज्यसभा में वाइस चेयरमैन बोलता है या चेयरमैन बोलता है, तो आप बात करेंगे तभी नाम जाएगा ना। बीजेपी के लोग कैसे तय करेंगे कि तृणमूल से कौन जाएगा? हम लोगों का वोट से प्यार से चुन के आया, वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको आप लोग इस तरीके से प्रेजेंट ना करें कि तृणमूल ने बॉयकॉट किया ऑपरेशन सिंधु। हम कहीं बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। तृणमूल इज द ओनली पार्टी जिसने इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया। द रूलिंग डिस्पेंसेशन इंक्लूडिंग अ फ्यू पार्टी इन द ऑपोजिशन ऑल्सो हैज ट्राइड टू पॉलिटिसाइज इट। आई कंडेम इट। भाई जहाँ देश की बात हो वहाँ पॉलिटिक्स की जगह ही नहीं है, ये साफ साफ हम कह रहे हैं। एंड आवर चेयरपर्सन हैज स्टेटेड दिस टाइम एंड अगेन। কৌশিকদা চাকরিহারা শিক্ষকরা যাতে চাকরি ফিরে